رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ویلکم بیک جی، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف لوگوں سے، بہت سی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہی از اے سیڈ فزیولوجسٹ، ہی از اے اسٹریس بایولوجسٹ اینڈ پروفیسر آف ایگرونومی۔ یہ سارے ورڈز میرے لیے بہت نیو ہیں اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم مورنگا کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب اتنی مشکل چیزیں، اتنا مشکل کام، یہ کیا صرف سننے میں مشکل ہے یا در حقیقت مشکل ہے؟ کوئی اس کے بارے میں ہمیں بتائیے پہلے تو۔ اصل میں ہر چیز ہوتی ہے، کسی چائنیز سے پوچھو نا کہ آپ کی زبان بڑی مشکل ہے، وہ کہے گا سب سے آسان زبان ہی ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ جو جہاں پہ ہوگا اس کو اپنے ارد گرد کی چیزیں یوز ٹو لگتی ہیں، ایسے ہی ہے، دوسری زیادہ مشکل لگتی ہیں۔ صحیح۔ سو آپ ویسے تو بہت ساری چیزوں میں اسپیشلٹی رکھتے ہیں، بہت ساری دفعہ آپ کو ہم لوگوں نے مختلف چینلز کے اوپر بھی دیکھا ہے، مگر ہم تھوڑا سا بیسک انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے مورنگا کے بارے میں۔ مورنگا ہے کیا اور کیا اس کے فائدے ہیں؟ دیکھیں، انسان نے جب اپنی صحت کے بارے میں سوچا نا تو اس کو کچھ چیزوں کا اندازہ ہوا کہ ایک تو اچھی اس نے فوڈ لینی ہے، ٹھیک، اور اس فوڈ کے اندر کچھ چیزیں جو بنیادی اجزاء جسے ہم کہتے ہیں، جیسے عام زبان میں جسے ہم نشاستہ، لحمیات اور چربی کہتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اور پروٹین وغیرہ، کہ وہ لینے ہیں، پھر منرلز اور وٹامنز ہیں، اور اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں جو وہ کھاتا ہے۔ اناج ہے، اللہ نے فروٹ، سبزیاں بنائی ہیں، گوشت بنایا ہے، ڈیری پروڈکٹ بنائی ہے، یہ فوڈ ہے، ٹھیک۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ پھر اس کو اندازہ ہوا کہ شاید اللہ نے ایسے پودے بھی بنا رکھے ہیں کہ جن کے اندر کوئی ہیلتھ بینیفٹس جو ہے نا عام غذا سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، روٹین میں ہم کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، گوشت ہے، سبزیاں کھاتے ہیں، تو ان سے بھی زیادہ کچھ کے اندر نا غذائی اور طبی فوائد زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بڑی اہمیت اختیار کر کے وقت کے ساتھ ساتھ پرانے زمانے میں بھی جب جتنی بھی طب تھی وہ ہربس کے گرد ہی گھومتی تھی، ٹھیک ہے، تو جہاں بھی کوئی سیاح ہوتا تھا تو اس کے پاس یہی ٹوٹکے ہوتے تھے کہ فلاں پودے کے پتے کھا لو، فلاں کے بیج کھا لو، فلاں کا ایکسٹریکٹ کھا لو، فلاں کی یہ کھا لو، یہی ہوتے تھے۔ بالکل صحیح۔ لیکن جو جدید سائنس نے پھر کیا کہ ان کے اوپر ریسرچ کی، ریسرچ کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ کیوں اتنے بہتر پودے ہیں، تو ان کو کچھ کو میڈیسن پلانٹ کا نام دے دیا گیا، کچھ کو فنکشنل فوڈز کا نام دے دیا گیا، کچھ کو سپر فوڈز کا نام دے دیا گیا۔ اچھا، ڈیفرنٹ کیٹیگریز بن گئی۔ ٹھیک۔ اب میڈیسن پلانٹ ایسا ہے کہ میڈیسن پلانٹ ضروری نہیں وہ فوڈ ہو، اچھا، وہ خاص بیماری میں کھایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، رائٹ۔ اب فنکشنل فوڈ وہ ہے کہ ہے وہ فوڈ ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں جیسے فوڈ کھانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ میڈیسنل ویلیو اتنی ہے کہ کلینکلی وہ پروو ہو گئی کہ فلاں میڈیسن کے اگینسٹ کھائیں تو وہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کو فنکشنل فوڈ کہتے ہیں۔ فنکشنل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور سپر فوڈ، ایک میڈیکل ہو گیا، فنکشنل ہو گیا، اور سپر فوڈ جو ہے، سپر فوڈ پھر ایک مارکیٹ کی ٹرم آ گئی، ٹھیک، کہ ایک ایسی فوڈ جو کہ عام فوڈ سے زیادہ غذائی اور طبی اہمیت رکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کھائیں، اس کو ایز اے فوڈ یوز کریں، آپ کو بیماریوں سے بھی بچائے گی۔ اور رسول نے کہا تھا نا کہ آپ کی اگر آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کی دعا نہیں ہے تو پھر آپ دعا کو کھانے کی طرح کھائیں گے۔ تو آپ اپنی جو کھانے کو اگر دعا کے طور پہ کھائیں تو پھر آپ کو بیماریاں نہیں آئیں گی۔ اچھا، یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کھانے کو آپ نے دوائی کی طرح کھانا ہے۔ تو ہم تو اتنے چسکے اور اتنے وہ لے کے وی ڈونٹ ریئلی کیئر، جب کھانا سامنے آتا ہے ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، وی ریئلی ڈونٹ کیئر واٹ وی آر ایٹنگ۔ اچھا، دیٹس سو انٹرسٹنگ۔ تو اس میں پھر جن پودوں نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کی ان میں سے جیسے ایلو ویرا آپ نے سنا ہوگا، ماچا ہے ایک وہ سنا ہوگا،
जिनसिंग है, सही बोला बहुत ज्यादा, लेकिन उसके अंदर तुलसी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो रिसर्च जिसके ऊपर भी वो मोरिंगा। ये जो आपने नाम लिए ये सुपर फूड में आते हैं? सुपर फूड्स हैं। ठीक हो गया। और किसी को आप एज ए टी पीते हैं, किसी को एज ए फूड खाते हैं, सारे ये ऐसे। एलोवेरा खाते भी हैं, पीते भी हैं, लगाते भी हैं, यूज भी करते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह मोरिंगा ये ऐसा पौधा है जिसको आप खा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, सूंघ भी सकते हो, डेप भी कर सकते हो, उससे मेडिसिन निकाल भी सकते हो। यस, और एज ए पेट भर के फूड भी खा सकते हो। अच्छा, तो ये लकीली ये पौधा जो ना ये हमारे खिते का है। ब्रिलियंट। ये पाकिस्तान का जो सदर्न पंजाब है, जो शुरू होता है हमारा ये मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खां वाला, लिया का ये सारा इलाका, यहाँ से वो बेस करता है। ठीक है। इसको मुकामी तौर पे सुहांजना कहा जाता है, जिसको किसी जमाने में सुहांजने की मूलियों का अचार लोग खाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, सुहांजना गोश्त बनाते हैं लोग, मैंने खाया हुआ है सुहांजना को, बट आई डिडंट नो कि इसको मोरिंगा जो है उसको कहते हैं। तो रवायती तौर पे हमारे खिते का ये पौधा है। अच्छा। लेकिन हमारे खिते में क्या किया जाता था कि इसको घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक, इसको सिर्फ वही जुबान के चटखारे की जैसे बात की ना, तो इसकी 2 डिशें ऐसी थी जिनका जुबान का चटखारा बहुत अच्छा था। अच्छा, वो कौन सी थी? वो ऐसे था कि जो सदर्न पंजाब के लोग हैं ना, तो उनके पास जो कि इसके दरख्त होते थे, ठीक, तो दरख्त होते जो ही उसके वो फूल आने लगते थे, तो उसके जैसे कचनार हम खाते हैं ना, तो इस तरह जब उसके फूल अभी बनते तो उतार के ना, तो उसको वो सुहांजना गोश्त के साथ वो बनाते थे। ठीक। लेकिन वो करते क्या है, अब भी वो करते हैं, अभी भी बड़ी पॉपुलर डिश है। उसको 8-10 दफा बाज का धोते हैं, कई दफा 3-4 दफा तो कम से कम धोते हैं, बल्कि बॉयल करते हैं। अच्छा। तो बॉयल कर करके उसकी जो कड़वाहट निकालते हैं, दरअसल जब वो कड़वाहट निकालते हैं ना, तो इसकी 70-80% आप समझे कि जो इसके हेल्थ बेनिफिशियल अफादियत है वो निकल जाते हैं, खत्म हो गई। ठीक, तो फिर उसको पका के खाते हैं, वो टेस्ट फिर भी कुछ जिस तरह से हम सब्जियों के साथ भी यही करते हैं कि जो उसकी असल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप जाल लेके नहीं जाते, उनको भून भून के। बिल्कुल सही। और इसी तरह जो हमारा ये सेंट्रल पंजाब का हिस्सा है, साहिवाल, लाहौर, फैसलाबाद और ये इलाका, यहाँ पे लोग उसी की जो जड़ होती थी उसको सुहांजने की मूली कहते हैं, उसका अचार खाया जाता है, आज तक खाया जाता है। ठीक है। तो वो अचार भी अच्छी चीज है, लेकिन वो तो आप एक काश खानी, कभी कभार खानी। लेकिन दुनिया ने जब रिसर्च की सारी, और इसको फिर जो एलोपैथिक में और हर्बल मेडिसिन में पूरी दुनिया ने, वेस्ट ने जब इसके ऊपर रिसर्च की, तो उसका आया कि नहीं भाई, इसको अनकुक्ड खाएं तो उसके अंदर मेडिसिन वैल्यू ज्यादा है। और अनकुक्ड वो फूल तो खाए नहीं जा सकते, बहुत कड़वे हैं, जड़ भी बहुत सख्त नहीं खाई जा सकती। उसमें फिर सबसे ज्यादा ये आया कि इसके जो पत्ते हैं, उन पत्तों को ताज़ा या उनको ख़ास तरीके से खुश्क करके तो वो फिर खाया जाए। अच्छा, तो अब जो हम मोरिंगा जिसकी बात करने जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू को समझा गया और अब उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको आप कह रहे हैं कि फूलों को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो बहुत कड़वे होते हैं, ऐसे ही है? नहीं, सारा ही मोरिंगा जड़ से लेके फूलों तक सारा ही अब मार्केट तो सेम ही अफादियत है उसके अंदर, थोड़ी डिफरेंट है। देखिए वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर लीव्स हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट होंगी, फूल की डिफरेंट होंगी, जड़ की मुख्तलिफ होगी, तो वो जरा थोड़ा वो उसको भी एक्सप्लेन। उसमें कि चूंकि इजी टू मार्केट, प्रोडक्शन ज्यादा थी लीव्स की, तो फिर लीव्स आप समझे कि 90% जो इसकी मार्केटिंग है वो लीव्स की होती है। ठीक हो गया, क्योंकि पत्ते ज्यादा है ना, बिल्कुल ठीक, फूल साल में एक दफा आने हैं, फली भी साल में एक दफा आनी है, जड़ भी पूरा पौधा जाया करना है, वो पीछे रह गए। ठीक, अब भी हो रहे हैं मार्केट, वो भी हो रहे हैं, लेकिन पत्ते ज्यादा हो रहे हैं। ऑल राइट, आई अच्छा, ये क्यों हो रहे हैं? असल में अब आपका ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसके फायदे हैं क्या? जी बिल्कुल, यही पूछना चाह रहे थे। जी, क्या फायदे? तो इसके ना जो एक तो होता है ना कि एक फोकलोर चलता है, एक इलाके में एक बंदा करता है, लेकिन जो बाकायदा साइंस से साबित की गई चीजें मैं चाहता हूँ वो बताता हूँ। ठीक है, देखिए जी, इसमें एक सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी ना न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है कि इसको कंपेयर किया जाता है कि आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ विटामिन सी है। बिल्कुल। तो विटामिन सी का आम सोर्स आपके जहन में फौरन सिट्रस आएगा। बिल्कुल। तो बाई वेट अगर देखें तो सिट्रस से 7 टाइम्स ज़्यादा इसके पत्तों में विटामिन सी है।
अच्छा, जी, इतना ज्यादा। ओह, यानी दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट अगर देखें ना किस चीज में विटामिन सी है तो मोरिंगा के पत्तों में। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम सुहांजना मोरिंगा दोनों चीज एक ही है, सेम ही है, हम मगर मोरिंगा ही यूज करेंगे। देखिए मोरिंगा इसलिए हम यूज करते हैं कि अब हम ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया में हम बात करते हैं। तो मोरिंगा इसको सुहांजने को इंग्लिश में कहते हैं? वही है, सेम है। ड्रमस्टिक ट्री भी कहते हैं, बेनाइल ट्री भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन मदर्स बेस्ट फ्रेंड ट्री भी कहते हैं, लेकिन जो अच्छा वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं मदर्स बेस्ट फ्रेंड? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू? नहीं, वो मलाया के अंदर इधर जो फिलिपाइन है ना, वहाँ द मोमेंट माँ अपने बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग पे आती है ना, तो वहाँ फिर वो पीना शुरू कर देती है मोरिंगा के पत्तों का सूप। अच्छा, और उससे फिर उसकी मिल्क क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। दैट्स ब्रिलियंट। और माँ और बच्चे को तो ये एक फायदा हो गया, ये बहुत बड़ा फायदा, बिल्कुल बहुत बड़ा फायदा ये। अच्छा, और इसके फायदों में अगर हम जानना चाहें तो हम फायदों में उसके जो फायदे आए हैं उसमें एक जो डायबिटीज है ना, उसके अगेंस्ट इसका जो फायदा आया है, ठीक है, लाइक अब पाकिस्तान में भी ज्यादा लोग जो ले रहे हैं ना, उसे ओबेसिटी के लिए और डायबिटीज के लिए ले रहे हैं ज्यादातर जो ले। अच्छा, ग्रीन टीज भी आती हैं इसलिए ग्रीन टीज की सूरत में मिले? हाँ, ऐसे ग्रीन टी भी आती है, ठीक है। डायबिटीज में इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जो कि डायबिटीज को शुरू करती है, ये उसको इंसुलिन ट्रिगर जो होती है, हाँ, तो वो जब बॉडी असल में इंसुलिन का ये सारी बीमारियों का आगाज तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज्यादा होता है और इंसुलिन बनती भी है लेकिन सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, फिर टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, सब कुछ आता है। ठीक हो गया, एक तो ये उसको रोकता है। ऑलराइट। दूसरा ये कि जो पैंक्रियाज है जिन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, वो जब डैमेज होना शुरू होता है ना, तो ये उसका डैमेज रोकता है। ठीक है, जब मोरिंगा लेना शुरू कर देते हैं वो डैमेज रुक जाता है। सही। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल शुगर के साथ मिलके आर्टरीज में जमता है ना, ठीक है, तो ये उसको जमने नहीं देता। उसको क्यों कितनी बड़ी बात है ये, बिल्कुल सही, क्योंकि उसके अंदर अच्छा बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर इसके अंदर ऐसे कंपाउंड है आइसोथायामीन वगैरह ना, कि जो कि आर्टरीज को खोल देते हैं, ठीक है, और जो जमा हुआ प्ला के निकल जाता है, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। ठीक, एक इसका बहुत बड़ा फायदा है। ऑलराइट। दूसरा ये है कि एज ए ग्रीन टी और बाकी एज ए पाउडर जब इसको यूज करते हैं ना, तो आर्थराइटिस में और पेन में बहुत फायदा है। क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 38 ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, कि जो दर्द खत्म करते हैं। अच्छा, यानी जो जोड़ों गिट्टों गोडों के जो दर्द हैं सब खत्म, पूरे जिस्म की बॉडी में। ये तो आप इतने फायदे बता रहे हैं, मुझे तो लगता है सिर्फ मोरिंगा शुरू कर दो तो सारे मसले हल हो जाए। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक, तो इन्फ्लेमेशन जो है ना, अब जो दर्द होती है ना, दर्द का एक बहुत बड़ी रीजन इन्फ्लेमेशन, ठीक है, सोजिश जिसे कहते हैं। ये दरअसल सोजिश क्या है, हमें चोट लगती है ना, तो जिस्म उसको रिस्पॉन्ड करके एज ए मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन्फ्लेमेशन करता है। ठीक है, लेकिन वो होती है टेम्परेरी। ठीक, अगर ये परमानेंट सोजिश होना शुरू हो जाए जिस्म के अंदर और इंटरनल ऑर्गन्स में हो जाए, वो फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का काज होता है। अच्छा, तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारा कंपाउंड है। ओके, एक्सीलेंट। तो उसमें जो हार्ट के, लिवर के और किडनीज के, बाकी जगह पे आर्टरीज के अंदर जहाँ से इन्फ्लेमेशन हो रही ना, ये उनको रोकता है, ठीक तो इन सारी बीमारी से बचाता है। सही। फिर इसका एक बहुत बड़ा जो फायदा है वो ये है कि स्किन के ऊपर, अच्छा, कॉस्मेटिक में चलिए खवातीन खुश हो जाएं। कॉस्मेटिक में ये बहुत ऊपर है। अच्छा, अगर आप कोई भी महंगा वाला कॉस्मेटिक देखें, आप ये कह रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है महंगा तरीन प्रोडक्ट ये अच्छा, है। अच्छा, तो कोई भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट देखें ना, उसके अंदर आपको नजर आएगा BEN, बेन ऑयल। अच्छा, बेन ऑयल, बेन ऑयल, अच्छा, सस्ते वाले में नहीं होगा। ठीक है। अब बेन ऑयल पाकिस्तान वो क्या है, इसके बीज का तेल है। ओह, अच्छा, वो क्या है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी रिंकल, एंटी एजिंग है। ठीक है, नेचुरल। ये तो मुझे कोई जन्नत का पौधा लग रहा है डॉक्टर साहब। नेचुरल फ्रेशनेस, अच्छा, और स्किन रिपेयर कर देता है और एजिंग खत्म करता है, लाइंस को खत्म करता है, तो ये यूज होता है उसमें। अच्छा, बेन ऑयल। फिर इसके ये पत्तों का ना लेप बना के यूज किया जाता है। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर वो मास्क के तौर पे उसको ये फुलर अर्थ या जिसे मुल्तानी मिट्टी हम कहते हैं ना, उसके साथ मिक्स करके और साथ ये रोज वाटर के साथ मिक्स करके उसको ऐसे मास्क यूज किया जाता है। तो ये स्किन के ऊपर एंटी फंगल है, जो फंगस है उसको
को खत्म करता है और ग्लो भी देता है, जो ग्लो भी देता है, जो मेलानिन प्रोड्यूस होता है कलर वाला उसको कम करता है, धूप की वजह से रंग होता है। और तीसरी चीज ये है कि जो सेल डैमेज होते हैं ना, तो इसके अंदर एक हार्मोन है जिसको जिएटन कहते हैं, ठीक है, वो उसको रिपेयर कर देता है, वो स्किन ग्रो कर जाती है। ओके ओके ओके। ये मैं फिर आर्थराइटिस में ये बड़ा सक्सेसफुल है। सही। ये मैंने आपको ना चंद एक बताया। तो मैं वही मैं देखना सोचना ये चाह रही हूँ कि आपने जो तमाम चीज़ें बताई हैं उसमें दिल की बीमारियों से लेके आर्थराइटिस की बीमारियों से लेके चेहरे के रिंकल से लेके मतलब हर चीज़ ने इसको ये कवर कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ायदे तो हमें पता चल गए, जन्नत का पौधा है ये फॉर श्योर। सो ये सवाल है कि इसको लेने के तरीकाकार क्या है? जी देखिए, सबसे आसान तरीका जो है ना, मैं पिछले 13-14 साल से लोगों को ये बता रहा हूँ। ठीक है। पहले तो ये कि हर घर में इसका पौधा होना चाहिए। देखिए मेरी विश क्या है, बिल्कुल ठीक है। घर में पौधा मतलब आई लिव इन एन अपार्टमेंट, तो वो पौधे में लग जाएगा या जमीन में ही लगाना पड़ता है? अच्छा, ये जमीन में लगेगा। बहुत बड़ा जिसमें कम से कम 25-30 किलो मट्टी हो, तो फिर उसमें थोड़ा सा बनेगा। लेकिन ये इसको धूप चाहिए, ठीक है, और इसको जमीन चाहिए, तो जमीन में इसको लगाया जाए। अब नियर बाई पार्क है, कुछ है, एक दरख्त हो तो एक कॉलोनी के लिए काफी है उसके लिए। अच्छा, अगर वो अब शहरों में जो कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हर एक की एक्सेस नहीं है, जगह नहीं है, तो उसके लिए फिर ये कि अब मार्केट हो रहा है। अब मार्केट हो रहा है, बाजार में जो सबसे ज्यादा जो चीज़ इसकी मिलती है ना, वो शेड ड्राइड लीव्ड है, क्योंकि शेड ड्राइड लीव्स। अच्छा, यानी वो शेड के नीचे, ठीक हो गया। वो एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर बनाते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इसको शेड में ड्राई करते हैं, ताकि इसकी जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन है वो रिटेन रहे। बिल्कुल ठीक है। अगर धूप में करेंगे तो वो खत्म हो जाती है। तो घरों में भी अगर कोई करना चाहे तो वो आप 50 से ऊपर टेम्परेचर नहीं। अब घरों में कैसे 50 करना है, बस छांव में करें। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारे टेम्परेचर 50 तो कभी होता ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो छांव में करें, छांव में वैसे टेम्परेचर कम होता है। तो जब हॉट एंड ड्राई वेदर हो, मतलब आजकल सर्दियां अभी खुश करना मुश्किल है। आप अप्रैल मई जून में पत्ते इसको खुश कर सकते हो, ठीक है। तो वो ड्राइड है, उसको फिर आपने पाउडर, अच्छा पाउडर कोई ज्यादा प्लेजेंट टेस्ट नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसको सब कुछ चीज दी है, टेस्ट इसके पत्तों को नहीं दिया। सही, वो ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं कि वो लड़की बड़ी सुगड़ होती है, बड़ी प्यारी भी होती है ये, मगर जब बोलती है ना तो बड़ा कड़वा बोलती है। तो ये वो वाली बात है। तो इसका ना जैसे आमतौर पे टेस्ट कड़वा है। हाँ, कड़वा कसैला सा टेस्ट है। अच्छा। और बल्कि इसका तो किस तरह जो पाउडर को कैसे खाया जाए? पहले बताओ, इसका पाउडर पड़ा होगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ना हिना, मेहंदी जो मेहंदी है वो पड़ी हुई है, और स्मेल भी कड़े उसे मिलती जुलती है। अच्छा, ठीक हो गया। अब मेहंदी को खाने की कोशिश करें, आपको थोड़ा मुश्किल होगा, ज्यादा लोगों से ऐसे नहीं खाया जाता। तो उसके 2-3 तरीके हैं। ठीक, एक तो ये कि कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं मसला, वो खाते हैं, ठीक है, वो 2-2 चम्मच खाते हैं। विल की बात है, क्योंकि नॉर्मल फिटनेस के लिए रोजाना 1 से 2 ग्राम यानी आधा चम्मच काफी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई डिजीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, कोई चीज है, तो फिर आपको 5 से 8 ग्राम लेना पड़ता है, यानी 2 चम्मच लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ लोग करते हैं पानी में घोल के रात को रख देते हैं, सुबह पी लेते हैं। अच्छा, कुछ लेके दही के अंदर शामिल करके। सबसे जो पॉपुलर है, जो कि अब रमजान में भी हम लोगों को ये कहते हैं कि जब पुदीने की चटनी बनाते हैं ना, तो पुदीने की चटनी के अंदर अगर आप ताज़ा पत्ते हैं ना, तो ताज़ा पत्ते शामिल कर लें, वरना पाउडर उसके साथ शामिल कर लें। बट डॉक्टर साहब, पुदीने की चटनी तो आप इतनी नहीं खाते ना, इतनी ज़्यादा तो नहीं खाई जाती, तो उसमें पुदीने के पत्ते भी होंगे, धनिया भी होगा, और मोरिंगा भी अगर डालेंगे तो वो क्वांटिटी इनटेक कम होगी उस हिसाब से। आपने जो अपनी प्याली के लिए पुदीने की चटनी डाली, उसमें आप अपना पूरा 1 चम्मच डाल लें। बिल्कुल ठीक है, आप वो पैलेटेबल हो जाएगा, पर इजी हो जाएगा। सही। तो आप उसमें ये पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, ताज़ा पत्ते, और आप ताज़े पत्ते भी डाल सकते हैं, ठीक हो। अच्छा, उसके बाद एक और जो फिर मार्केट की डिमांड के लिए लोगों के लिए फिर ये है, वो कैप्सूल आ रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, तो वो कैप्सूल में फिल करके आते हैं, तो वो आप कैप्सूल के, वो इजी टू है। हाँ, तो वो तो बेस्ट है, वो बेस्ट है। लेकिन उसमें देखें ना, बहुत सारे लोग मेंटली तौर पे होते हैं कि हम हर्ब ले रहे हैं, नेचुरल ले रहे हैं, और कैप्सूल में ले रहे हैं। हाँ। कुछ लोग नहीं लेते, बाकी लोग कहते हैं नहीं जी, हमसे नहीं खाया जाता, कैप्सूल दे। बिल्कुल सही। अब मार्केट की डिमांड। दूसरा फिर ये कि इसकी ग्रीन टी भी आ रही, बिल्कुल, ग्रीन टी मैंने खुद देखी है, साशे वाली भी आ रही है। फिर ये कि और आपके पास पाउडर है या आपका ताज़ा पत्ते, आप उसकी घर में खुद ग्रीन टी बना सकते हैं। इफेक्टिव कौन सा है?
पाउडर लेना ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा। और वो कम से कम आप अगर आपको कोई मेजर एलिमेंट नहीं है, बीमारियों से बचना चाहते हैं। देखिए मुझे 15 साल पहले प्री डायबिटिक था, ठीक है, मेरे घुटनों में भी दर्द थी, ठीक, मुझे कोलेस्ट्रॉल भी मेरा ज़्यादा था, ठीक, मेरा अर्ली स्टेज ऑफ फैटी लीवर था, अच्छा, ठीक है, मेरा किडनी भी जो ना वो इफेक्ट था, गाल ब्लैडर मेरा मिस हो गया, आपको सारी बीमारियां थी? सारी बीमारियां थी मुझे। तो उसकी वजह से आप डॉक्टर बने थे या डॉक्टर बनने के बाद बीमारियां उसी वजह से बना? अच्छा, मैंने फिर मुझे पता चला कि ये उस वक्त मैं जैसे आम लोग खाते मैं भी ये सब कुछ खाता था, ठीक है सर, ये मैं क्रिकेटर था, वो करता था, योगा करता था, इतनी सारी चीजें आपको इकट्ठे जब मतलब होनी शुरू हुई, सारा कुछ था मुझे, तो फिर मुझे पता अच्छा उस वक्त, अब मैं यहाँ पे रुक के देखने वालों को ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब इतना कुछ आपको हो, व्हेन यू गोइंग थ्रू सो मच, इतनी ज्यादा आपके साथ बीमारियां लगी हों, तो दो तरीके हैं आपके पास जिंदगी को देखने के। एक तो ये कि आप कहते हो इससे बेहतर है मैं मरी जाऊं कि अगर मैं ना कुछ खा सकता हूँ ना कुछ पी सकता हूँ। दूसरा तरीका, द वन यू चोज दैट यू सेड कि नहीं मुझे इसका कोई हल निकालना है, सो दैट्स व्हाट यू केम अप विद। 2-3 साल तक ना मुसलसल मेडिसिन खा के थक गया। अच्छा। तो फिर मैंने एक बड़े सियाने डॉक्टर थे, डॉक्टर एहसानुल हक, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सही। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे प्रेस्क्राइब किया, तो मैंने उनके सामने पकड़ के ऐसे फाड़ के फेंक दिया। अच्छा अच्छा, वो जैसे नेचुरल होता है कि हाउ डेयर यू। हाँ। मैंने कहा आई एम प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी, हाँ। मुझसे, मैं आपके पास इसकी रूट काज के लिए आया हूँ कि मुझे ये क्यों बीमारी है। ठीक। उन्होंने कहा ये सारी बीमारियां दरअसल एक्चुअली बैड लाइफस्टाइल की वजह से है। ठीक। तो ये सारी रिवर्स हो सकती है अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर लो। ठीक हो गया। मैंने कहा लाइफस्टाइल कैसे ठीक हो रहा है? उन्होंने कहा पहले ये देखो कौन सी फूड आपको सूट नहीं करती वो ना खाओ। ठीक है। दूसरा ये है कि हेल्दी फूड पे सॉरी मुझे बताएं कि आपका वेट भी गेन था? आपने नहीं, अच्छा वेट नहीं मेरा गेन, वेट नहीं था, सही, बाकी सारे वो वैसे ही था, एक्टिव में ऐसे ही था, योगी क्रिकेटर भागता वो वैसे ही था, लेकिन बीमारियां मुझे बीमार। अच्छा चलें ठीक। तो फिर मेरे पास दो हाल थे कि या तो मैं बैठ जाता दवाइयों के ऊपर आ जाता जैसे सारे लोग हैं नॉर्मली, मुझे हाई ब्लड प्रेशर होता, शुगर होता, मुझे हार्ट का, मैं घुटनों का, सब कुछ बैठ के, ये मुझे 43 की एज में मुझे हो गया था। अच्छा। 43-44 की एज में ये इस सारे मामलात हो गए थे, उस वक्त हो गए थे पहले। फिर मैंने रिसर्च भी फिर सुपर फूड के ऊपर की, फिर मैंने इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एट द एज ऑफ 60 मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता। At the age of 60 you are 60? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता। अच्छा। सिर्फ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से। और उसमें क्या चेंजेस आई आपके, सिर्फ फूड के अलावा और क्या चेंज आया? फूड बेस्ड मेजर। हाँ 3 चीजें हैं। हाँ जी। नंबर 1 फूड, ठीक, बैड फूड छोड़ दी सारी मैं, वो अगला हम प्रोग्राम करेंगे बैड फूड कौन सी है और हेल्दी फूड कौन सी है, एक वो हेल्दी फूड के ऊपर आ गया मैं, ठीक है। और हेल्दी फूड के अंदर साथ हर्ब्स जैसे मोरिंगा, बहुत बड़ी मोरिंगा, किनवा, चिया, ये शामिल है। किनवा का सैलेड भी बनता है ना? वो भी मैंने पाकिस्तान में लेके आया। अच्छा, एक्सीलेंट। दूसरी चीज है कि फिजिकल एक्टिविटी। ठीक। फिजिकल एक्टिविटी में हर हफ्ते पहाड़ चढ़ता हूँ ऑलमोस्ट, या महीने में एक दफा लॉन्ग ट्रैक जरूर करता हूँ, डेली वॉक करता हूँ, योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, करवाता हूँ, ठीक है। सही। तीसरी चीज मैं खुश रहता हूँ। वो कैसे खुश रहते हैं? मैं रहता हूँ खुश। अच्छा। बस वो तरीके कार है। ये तीनों चीजें हैं हेल्दी लाइफस्टाइल में, ये तीनों चीजें। सो जी सबसे पहले हो गया फूड, देन एक्सरसाइज एंड यू स्टे हैप्पी, थिंक पॉजिटिव। यस, ये 3 चीजें हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है। और वही जब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हो गया, फिर मैं लोगों को बताना शुरू कर दिया। ठीक। रिसर्च भी उसी के ऊपर शुरू की, पब्लिसाइज भी वही शुरू की। तो जब आपने ये हेल्दी लाइफस्टाइल किया, मोरिंगा का इस्तेमाल आप कैसे करते थे? मोरिंगा का इस्तेमाल शुरू में, फिर मैंने फौरन पौधे उगाए। हाँ। पौधे उगाए। हाँ। और पूरे पाकिस्तान में पौधे भी डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए। अच्छा। प्लांटेशन शुरू कर दी, सीड डिस्ट्रीब्यूट शुरू कर दिया। खुद मैं रोजाना एक मुट्ठी पत्ते जो है ना, वो मैं सैलड के साथ ऐसे ही खा जाता था। अच्छा। और अभी जब तिलक खा रहा था, फिर मैं पाउडर बना के उसको कभी कैप्सूल की शक्ल में, कभी ऐसे, पिछले मैं 13-14 साल से शायद ही कोई दिन हो जिस दिन मैंने मोरिंगा नहीं खाया। क्या कहने, वाओ दैट्स सो अमेजिंग एंड इंस्पिरेशनल। अब डॉक्टर साहब टुवर्ड्स द एंड आई जस्ट वांट यू टू से, रमज़ान का महीना है, सहरी इफ्तारी हम कर रहे होते हैं और कितना कैसा फूड खा रहे होते हैं, तो आप जानते हैं कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मोरिंगा का रमज़ान में। अच्छा, आपने ये तो देख लिया कि मोरिंगा के कितने फायदे हैं। जी। अब इसको यूज करना है।
تو سحری میں کیسے کرنا ہے اور افطاری میں کیسے کرنا ہے. بالکل. سب سے پہلے میں افطاری میں آؤں گا. اچھا. افطاری میں ایک تو جو پودینے کی چٹنی بنا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ نے جو بھی جس کے لیے بھی بنائی ہے وہ علیحدہ, چاہے پکوڑوں کے لیے وہ علیحدہ سٹوری ہے. اس کے اندر مورنگا کے تازہ یا اس کا پاؤڈر ضرور شامل کرنا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ جو آپ ڈرنک بناتے ہیں نا, تو دنیا میں اب جو ایک بڑا پاپولر ڈرنک ہے نا وہ مورنگا ڈرنک ہے. اچھا. وہ کیسے بنایا جاتا ہے کہ مورنگا کے تازہ پتے اگر آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے, ورنہ تھوڑا سا پاؤڈر لے کے اس کو کیا جاتا ہے, تھوڑا سا پودینے کے پتے, فریش پتے, ٹھیک ہے, یہ ڈرائی نہیں لینے, جی جی, پنچ آف سالٹ اور پنچ آف کالی مرچ, ان کے ساتھ پانی کے اندر ڈال کے اس کو خوب بلینڈ کیا جاتا ہے. ساتھ اس کے اندر میٹھا کرنے کے لیے آپ سٹیویا ڈال لیں, کھجور ڈال لیں, انجیر ڈال لیں, شہد ڈال لیں, اس کو بھون لیں اور اس کا ڈرنک بنا لیں. تو لیمن ڈال لیں ساتھ. وہ ایک کمپلیٹ ہے کہ آپ نے سارا دن میں جو بھی الٹا سیدھا کھایا ہے. مورنگا مارگریٹا. یس, یہ ایکچولی میں اس کو ایکچولی مورنگا مارگریٹا ہی کہتا ہوں. تو آپ صحیح پہنچے. بالکل. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر یہ عام لوگوں کے لیے کافی ہے اتنا, ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کو یہ فیٹی لیور کا پرابلم ہے, بلڈ پریشر کا ہے, شوگر کا ہے, یا باقی ایلمنٹس, یہ ساری چیزیں ہیں اس کو نا, تو اس کو چاہیے کہ صبح اٹھ کے جب پہلے سحری کے ٹائم صبح اٹھتا ہے نا, تو وہاں 1 یا 2 جو چمچ ہے مورنگا کے پاؤڈر کے یا کیپسول کے فارم میں, کیپسول کے فارم میں کم سے کم 5 گرام اس کی ڈوز لے, وہ ضرور لے لے. اور باقی شام کو جو میں نے سحری میں افطاری میں بتایا باقی وہ لے. یہ آپ کی روٹین میں شامل کر دے. پکوڑوں کے اندر بھی مورنگا ڈالا جا سکتا ہے, روٹی کے اندر مورنگا ڈالا جا سکتا ہے. جن لوگوں کو بلوٹنگ کا اور تھوڑا دوسرا مسئلہ بنتا ہے, تو وہ ملٹی گرین جو آٹا بھی مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی مورنگا ہے, تو اس میں عام آٹے کے اندر بھی آپ تھوڑا مورنگا کا پتے یا مورنگا کا سفوف ڈال لیں گے نا, تو اس میں جو ہیوی پن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایکسلنٹ, زبردست. تو آپ کیا آخر میں پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں, کیونکہ فوڈ کے حوالے سے تو ہمارا ایک علیحدہ پروگرام ہے جس میں ہم بتائیں گے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اور سپر فوڈ اینڈ آل دیٹ, بٹ مورنگا کے حوالے سے آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کس طرح سے شامل کیا جائے؟ دیکھیں, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ جو ساری بیماریاں جس میں پورا پاکستان بھرا ہوا ہے, تو اگر آپ نے صرف مورنگا کھا کے ٹھیک ہونا ہے تو آپ سے زیادہ بھولا کوئی نہیں ہے. You have to change life style. Right. اگر آپ نے سکن اچھی کرنی ہے, آپ کی فوڈ اچھی کرے تو اندر سے گلو کرے, پھر ماسک لگائیں, پھر ٹھیک ہوگا. اگر صرف کریم لگا کے شارٹ کٹس میں نہیں جائیں, نہیں شارٹ کٹس میں. زندگی جو ہے نا وہ لائف سٹائل ایسے نہیں ہے. پازیٹیو لائف سٹائل, ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں, اور اس میں مورنگا آپ کو قدم قدم پہ مدد کرے گا. فیٹی لیور ٹھیک کرے گا, آرتھرائٹس ٹھیک کرے گا, دردیں کم کرے گا, آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک کرے گا, سب. لیکن آپ اس کی سپورٹ میں فوڈ بھی تو ٹھیک لے رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, تو ہر بندے کو لینا چاہیے. میں کہتا ہوں دنیا میں 2 بندے ہیں, ایک وہ جو مورنگا یوز کرتے ہیں, دوسرے وہ جنہیں پتہ نہیں مورنگا کے فائدے ہیں, تیسرا کوئی بندہ نہیں دنیا میں. بالکل صحیح, ایکسلنٹ, سپر. اٹ واز لولی نوئنگ اباؤٹ مورنگا فرام یو ڈاکٹر صاحب. اور یقین کیجیے آخر میں یہی کہنا چاہوں گی, ساری باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے کر لی, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنی آتھینٹسٹی, جتنی پازیٹیوٹی اور انرجی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں نا, آئی ایم امپریسڈ. اور آج میرے گھر پہ بہت عرصے سے گرین ٹی پڑی ہوئی تھی مورنگا کی, وہ میں جا کے پیوں گی آفٹر آبویسلی روزہ کھولنے کے بعد. تو جزاک اللہ, بہت شکریہ. یہ خیر لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے اللہ آپ کی زندگی میں بھی آسانی کرے. جی یہاں پہ رکیں گے, ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے انشاءاللہ واپس آئیں گے. ایک انسپائرنگ سٹوری ہمارے ساتھ ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم